Greetings to all. As we are covering the important part of the VVM syllabus, in that we have covered two chapters of this study material given by VVM to students. So today we are going to discuss the chapter number 2 of this, Science as a Tool of British Exploitation of India. This one is such a beautiful article which is written by the writer. This one is not the article which a Vivian student should know or read. This is the article which each and every Indian should read. So, science as a tool of British exploitation of India. In this article, it is discussed that how the Britishers have used science for the exploitation in India. As we know, with decades of the East India Company, first decisive battle was the Battle of Plassey, when the Britishers won from the Nawab of Bengal in 1757. So it was the time when they won the first battle, first important battle in India. And then there was the Irish statement economist and philosopher Edmund Burke has stated that the company was the state of guise of a merchant, that the East India Company start establishing his impact in India and they come in the guise of a merchant. Guise of merchant मतलब वो धोखे से व्यापारी के भेद में हमारे सामने आए थे. The turning point in the Indian history, this one is the important turning point, the Battle of Plassey 1757, and important for several reasons. And the most important क्या था कि the East India Company got the Diwani right in Bengal. And see what is the impact of this thing. Bengal was a very rich state at that time. Before 1757, Bengal has a surplus balance of payment and its exports exceeding the import. बंगाल के अंदर ये था कि बंगाल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था इम्पोर्ट के कंपैरिजन में. बट आफ्टर जैसे ही ये बैटल ओवर हुई इन द पीरियड 1757 टू 1780, अब वुफिंग सम ऑफ ये देखा गया कि 38 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग वाज सिफेंड ऑफ फ्रॉम बंगाल टू इंग्लैंड. ये देखा गया कि पहले जो एक्सपोर्ट इतना करता था इम्पोर्ट कम करता था, सडनली सारी सिचुएशंस रिवर्स होती जा रही हैं. पहले ये था दैट द बंगाल वाज हैविंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, हमारी जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, बहुत सारा पैसा यहाँ से बनता था. एंड दिस वन वाज द मेन स्टेट ऑफ द इंडिया विच वन इज़ द वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट. तो सडनली ब्रिटिशर्स ने बहुत कम टाइम में ही सारे सिनेरियो को यहाँ उल्टा कर दिया था. देन व्हाट हैपेंड, Britishers start working in the way of science. Science become East India Company biggest weapon in the exploitation of India. How they have used it? First of all, as they get the just win this battle of 1757, they establish Survey of India in 1767. आपको ये डेट याद रखनी है कि when the Survey of India was established. The Survey of India was founded in 1767. This one was a scientific study of the Indian land. You can read here, come essential to them survey to the land and the navigation routes to increase revenue and implement administrative and military measures to fulfill their expansion plan. Major James Rennell was appointed as the Surveyor General of Bengal. उनको बंगाल का सर्वे जनरल बनाया गया था आफ्टर द कंपनी रिसीव्ड दीवानी राइट. जैसे ही उनको बंगाल में दीवानी राइट बना था, कहाँ कहाँ पर उनको बनाया गया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में. कब बनाया गया, 1767 में. द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, जो फर्स्ट ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का नाम था इन द सब कॉन्टिनेंट, वो यही था, द सर्वे ऑफ इंडिया. तो आप इसको जरा समझिए, व्हाट इज़ द सर्वे ऑफ इंडिया. थ्रू दिस डिपार्टमेंट, द सर्वे ऑफ इंडिया, Britishers has recognized all the main points of the minerals in the India, कि कहाँ कहाँ पर कौन सा मिनरल है, कितने अमाउंट में और कैसे मिलता है. और थ्रू दिस डिपार्टमेंट दे हैव सूट द रूट, उन्होंने एक रूट बनाया हाउ दे कैन टेक आउट इट फ्रॉम द इंडियन लैंड एंड कैन टेक इट टू द ब्रिटेन. उसको ब्रिटेन कैसे ले जा सकते हैं. दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ रूट फॉर दिस. देन next to it you can see these are the pictures which is very important for us. Through the survey of India, the East India Company mapped the entire subcontinent. उन्होंने पूरी सबकॉन्टिनेंट की मैपिंग कर दी, कहाँ पर कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में और कैसे मिलती है.
creating quantifiable knowledge, data and map and the census. They have seen a necessary step for efficient conquering and administering in India. Over the decade, different kinds of the topographical, geographical, military and revenue survey was being conducted by the Britishers in India. Britishers ने टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के सर्वे हैं इंडिया में कंडक्ट की. दीज वर द सर्वे, आज के टाइम पे भी सर्वे होते हैं. दे आर यूज इन बोथ वे, पॉलिटिकल एज वेल एज फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. दोनों तरीके से यूज़ किए जाते हैं. तो सेम थिंग वॉज देयर एट दैट टाइम. But the only difference was there that the main motive of the Britishers was how to do the exploitation in India. Then, in fact, the trigonometrical survey of peninsular India was established in 1800 with a second hand instrument. ये कहा गया कि उस टाइम पर Britishers had brought the scientific tools in India, but they haven't brought any new tools or the new technology in India. They have brought only the second hand tools from the Britain to India. And it was the first trigonometrical survey of peninsular India was established in 1800 by the second hand instrument after the complete defeat of the Marathas. Now, one more side incident happened in the Indian history. In 1818, the Marathas got defeat from the Britishers in the Anglo-Maratha War, and the entire territories south of the river Satluj came under the control of East India company. तो ईस्ट इंडिया के नीचे अंडर में ये सारी चीज़ आ गई. देन यू कैन सी द हाउ द ब्रिटिशर्स हैड डन द एक्सप्लॉयटेशन. It is the same GST that calculated the height of the highest mountain. The height of the highest mountain, which we come to know at this term as Mount Everest. At that time, the name was given to it is Peak XV, मतलब Peak 25. Then the person who worked as a computer there was an Indian. Underline this point there. Radhanath Sikdar. He was very important person. He was the Indian mathematician who worked as a computer for this work, who was appointed as the post of the computer. Then what happened when the complete process was get completed? The height of the all the peaks were measured, and the peak 25 was the highest peak was considered. Then Sikdar has not given any credit of it, though he has worked a lot of work for this, and he haven't given any credit. In place of him, the peak was named after the survey general. जो जनरल थे उस टाइम पर, सर्वे जनरल जॉर्ज एवरेस्ट एज माउंट एवरेस्ट. उनके नाम पर उसका नाम दे दिया गया माउंट एवरेस्ट. एंड द एक्चुअल पर्सन हु हैज़ वर्कड फॉर इट, ही हैवेंट गेट एनी क्रेडिट ऑफ दिस थिंग. सो दिस वन वाज द डिस्क्रिमिनेशन एट दैट टाइम. लूट ऑफ इंडिया थ्रू इंडियन रेलवे. येस, इट इज़ सैड. आज भी बहुत बार ये ऐसा कहा जाता है कि इंडियन रेलवे है जो ये अंग्रेज़ों ने भारत को दी है. बट द फैक्ट इज़ कम्प्लीटली रिवर्स. जो फैक्ट है वो क्या था कि ब्रिटिशर्स, नो डाउट दैट ब्रिटिशर्स हैज़ ब्रॉट द रेलवे इन इंडिया, बट व्हाट वाज देयर मोटिव? उनका मोटिव क्या था कि इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स पे जो बेटर से बेटर मिनरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हाउ दे कैन रीच टू इट ईजिली, वो उसके पास ईजिली कैसे पहुंच सके. दैट्स वाई दे ब्रॉट द रेलवे इन इंडिया. The day of April 16, 1853 is etched in our history as gold as the day when the first rail run in India, courtesy by the Britain. ये माना जाता है कि ब्रिटिशर्स की देन है कि हमारे भारत में रेलवे उनकी वजह से चली. द बॉम्बे टू मद्रास. नाउ यू कैन सी द रूट्स दैट was established by the Britishers was such as Bombay to Madras, like the Coach Rich. What are these ये कौन से एरिया हैं? कोल रिच बेल्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, सहलोक नाउ इन मध्य प्रदेश. ये देखिए मध्य प्रदेश में जो कोल रिच बेल्ट थी वहाँ से रेलवे को इस्टेब्लिश किया गया. और कहाँ पर इस्टेब्लिश किया? इन द छोटा नागपुर. नाउ वेयर इज द छोटा नागपुर? वी ऑल नो इट इज़ इन झारखंड. सो ये क्या है? दिस आर द कोल रिच साइट. For Indians, the third, and what was given to Indians in place of this? The third class compartment with wooden benches. There was the no comfortable seats in the railway for Indians. Then Governor General Lord Hardinge has argued in 1843 that the railway would be beneficial to the commerce, government and the military control of the India. He has given in his statement that the railway is beneficial for the commerce, government and the military control in the country. They are putting their points. The railway works off in Jaisalmer. Now see the next exploitation. The railway works off was in
Jamalpur in Bengal and Ajmer in Rajputana. Rajputana is now a time as Rajasthan. Was established in 1862. 1862 में रेलवे की वर्कशॉप एस्टैब्लिश की गई कहाँ पर? जमलपुर इन बंगाल एंड Ajmer in Rajputana. And the Indian mechanics were so efficient that they start making the compartment of the रेलवे डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग देयर ओन लोकोमोटिव. उन्होंने अपनी तरह से रेलवे को डिज़ाइन करना और बनाना शुरू कर दिया. बट दिस सक्सेस ऑफ द इंडियन मैकेनिक्स वाज नॉट गोइंग अंडर द नेक ऑफ द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही थी. दैट्स वाई दे स्टार्ट पुटिंग द न्यू काइंड ऑफ द एक्ट इन द पार्लियामेंट. और ब्रिटिशर्स ने पास्ट एन एक्ट इन पार्लियामेंट इन 1912. 1912 में उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया कि दैट नो मोर लोकोमोटिव विल बी मेड इन इंडिया. ये कह दिया गया कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि रेलवे के लोकोमोटिव बना सके. और ऐसा कह के जितनी भी हमारी इंडस्ट्री थी रेलवे के कोचेज बनाने की, उस सारी की सारी इंडस्ट्री को एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई. और इम्पैक्ट ऑफ दैट एक्ट वाज देयर. नो लोकोमोटिव वाज बिल्ड आफ्टर 1912. 1912 के बाद इंडिया में कोई भी लोकोमोटिव नहीं बने. और ऑन द अनदर साइड near about 14,400 locomotives from England alone. 14,400 locomotives सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से भारत में लाए गए. अंडरस्टैंड द डीप इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग. इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हो रहा था? इस चीज़ का इम्पैक्ट ये था कि एक इंडस्ट्री जो इंडिया में ही एस्टैब्लिश होती, इंडिया के लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती. इन प्लेस ऑफ दैट उस चीज़ को कम्प्लीटली दबा दिया गया. लोकोमोटिव कहाँ बन रहे हैं? ब्रिटेन में. किसके रिसोर्सेज से बन रहे हैं? इंडिया के रिसोर्सेज से. उसको फिर बेचा कहाँ जा रहा है? इंडिया में. मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल द बर्डन इज़ ऑन द इंडियन पीपल. सारा का सारा खर्चा कौन उठा रहे हैं? इंडियन पीपल. फ़ायदा किसको हो रहा है? ब्रिटिशर्स को हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ द टेक्निक्स वाज सेट एट दैट टाइम. अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड द लैब एंड इंस्टीट्यूशंस. ये वही डिस्कस किया गया है कि जितने भी लैब्स और इंस्टीट्यूशंस उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बनाई, उनका एक ही मोटिव था कि हाउ टू डू द एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया. तो आप देखिए इन द ईयर 1787 रॉबर्ट गाइड एन आर्मी ऑफिसर इन ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द कोलकाता बॉटनिकल गार्डन. अब जिसका नाम है आजकल आचार्य जगदीश चंद्र बोस. बॉटनिकल गार्डन इन हावड़ा इन कलकत्ता. बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है. बट see what was the motive of the Britishers at that time? Actually at that time Britishers has to purchase the teak wood from the Burma. All these things I am not telling from the my side. All these things are written in this book, in these articles, so you have to read it carefully so that you can attempt maximum questions in the exam. So what is there? The teak wood the British people has to परचेज फ्रॉम द बर्मा एट द वेरी हाई कॉस्ट. को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर टीक की जो लकड़ी है वो बर्मा से परचेज करनी पड़ रही थी. दैट्स वाई दे हैव सेट दिस बॉटनिकल सर्वे इन इंडिया. बॉटनिकल सर्वे किया गया कि हाउ मेनी टीक्स आर अवेलेबल इन इंडिया एंड हाउ वी कैन यूज़ इट. एंड देन दे हैव एस्टैब्लिश दिस बॉटनिकल सर्वे इन इंडिया और बॉटनिकल गार्डन इन कलकत्ता एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. ये वही बात बताई गई है कि किस तरह से इंडियन कॉस्ट पर सारा इम्पैक्ट सारी चीज़ों को सेट किया गया. एंड नाउ सी व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज सर्वेज और ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स. यू कैन सी द ब्रिटेन्स वाज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1600. 1600 ईस्वी के दौरान उस ड्यूरेशन में द टोटल GDP क्रेडिट फ्रॉम द ब्रिटेन टू द वर्ल्ड वॉज द ओनली 1.8. रीड दिस डाटा. ये यहाँ पर लिखा गया है बच्चों के समझने के लिए. अगर सपोज करिए कि हमारे पास सिर्फ 100 रुपीज़ हैं, तो उसमें से जो ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन था उस टाइम पर था ओनली 1.8. एंड द इंडिया वाज कंट्रीब्यूटिंग एट दैट टाइम 23% to 27%. मीन्स आर इकोनॉमी वाज सो ग्रेट एट दैट टाइम. ब्रिटेन की इकोनॉमी कितनी थी? 1.8. और हमारी इकोनॉमी कितनी थी? 23 से 27% तक आउट ऑफ 100. मीन्स वी वर वेरी रिच एट दैट टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1600. बट व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स स्टार्ट एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया. और बाय द एंड ऑफ 1940 1940 के आते आते देयर इंडिया वाज द कंट्री वेयर द मैक्सिमम पीपल वर अंडर द पॉवर्टी. जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग थे गरीबी रेखा के नीचे. एंड इन ब्रिटिशर्स हैव इंक्रीज देयर GDP फ्रॉम 1.8 to 10%. इन्होंने अपना इतना GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ा लिया था. किसकी हेल्प से? बाय द कॉलोनीज ऑफ ए ब्रिटेन.
So this one is a very important part that we have to remember. So now next, John Sullivan. See the John Sullivan, who was a British's president of Board of Revenue of Madras Presidency at that time. He has said at that time, our system. Underline these lines. These are very important line and going to come as reality. Our system acts very much like a sponge, drawing up all good things from the bank of the Ganges and squeezing them down on the bank of Thames. You can understand the deep meaning in this line. Here, this John Sullivan has said कि हमारा जो system है that one is acting like a sponge. स्पंज की तरह से काम कर रहा है, जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनको स्क्वीज कर रहा है, उनको स्पंज में ले रहा है. कहाँ से? फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगा. फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगा मतलब फ्रॉम द इंडिया एंड स्क्वीजिंग दैम, और उनको जाके निचोड़ रहा है कहाँ पर? ऑन द बैंक ऑफ थेम्स, बिकॉज वी ऑल नो दैट द लंदन इज ऑन द रिवर ऑफ द ऑन द बैंक ऑफ द रिवर थेम्स. तो यहाँ पर ये बहुत डीप मीनिंग दिया गया है जॉन सुलिवन के थ्रू कि हाउ देयर सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम वाज एक्टिंग एट दैट टाइम. Hope you have just understood the complete article written by the writer, and go through it, read it once more, and you will get definitely good marks from this part in your exam.